السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فائقہ معظم اور میں ہوں محمد حسنین خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ایم کیو ایم کا صدر کے لیے آصف علی زرداری کو ووٹ دینے کا اعلان۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا بلاول بھٹو کے آنے کی خوشی ہوئی، صدارتی انتخاب میں آصف زرداری کو ووٹ دیں گے۔ عوام کی دہلیز تک جمہوریت کے ثمرات پہنچائیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ نئی حکومت کی سب سے زیادہ توجہ کراچی پر ہوگی، ہم بلدیاتی سطح پر بھی اقدامات کریں گے، کراچی کے مسائل حل ہونے سے ملک کا فائدہ ہوتا ہے۔ خوشی ہے کہ آج بلاول بھٹو صاحب ہمارے درمیان ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی ہم پہلے بھی یہ کرتے رہے۔ آپ سب کے علم ہے زرداری صاحب کو سب سے پہلے ایم کیو ایم نے ہی پرپوز کیا تھا صدر مملکت کے لیے۔ آپ آئے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ صدارتی انتخابات میں ہم جناب آصف علی زرداری صاحب کی حمایت کریں گے، ان کو ووٹ دیں گے کہ اس کے اثرات پاکستان کی عام عوام تک پہنچیں گے۔ ہم سب اس بات میں متفق ہیں کہ عوام کی دہلیز تک جمہوریت کے ثمرات پہنچانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ کراچی کے مسائل ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مل کے کراچی کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نہ صرف ہمارا شہر کو، ہمارے صوبے کو، مگر پورا ملک کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور آئی لک فارورڈ انشاءاللہ تعالی کہ یہ اب جو حکومت بننے جا رہی ہے کہ اس کا سب سے زیادہ فوکس انشاءاللہ تعالی ہمارا شہر کراچی ہوگا، بلدیاتی سطح پہ ہو۔ ہم انشاءاللہ تعالی اپنا شہر کے نہ صرف آواز بنیں گے مگر اپنے شہر کے مسائل میں کمی لے کر آنے کے لیے، ان کا حل نکالنے کے لیے صف اول کا کردار ادا کریں گے۔ اتحادی جماعتوں نے آصف زرداری کو صدارتی امیدوار نامزد کرنے کی توثیق کر دی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اتحادی جماعتوں کے اعزاز میں شائعہ، کہا کہ انشاءاللہ 9 مارچ کو اتحادی پارٹیوں کا سورج طلوع ہوگا اور آصف علی زرداری صدر ہوں گے۔ ہماری اکثریت کا پوری قوم کو پتہ چلنا چاہیے، ہمیں مل کر اس کشتی کو پار لگانا ہے۔ خدا نخواستہ یہ ناؤ پار نہ لگی تو عوام اور تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ دل سے طے کر لیں، ہم نے اس ملک کی قسمت تبدیل کرنی ہے، باتوں سے نہیں محنت سے ترقی کر سکتے ہیں۔ چیلنجز ہمالیہ نما ہیں لیکن یہ لفظ بھی ان چیلنجز کا موازنہ نہ کر سکی۔ ہماری گیس اور بجلی کا سرکولر ڈیٹ 5 خرب روپے ہے۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں اور انشاءاللہ جو سورج طلوع ہوگا 9 مارچ کو، وہ انشاءاللہ اتحادی پارٹیوں کا سورج طلوع ہوگا اور زرداری صاحب پریزیڈنٹ منتخب ہوں گے۔ 2/3 عوام نے ووٹ دیے ہیں اور 1/3 ایک اور کو دیے ہیں۔ ان کے ذریعے پوری قوم کو پتہ چلنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر ہمیں اس کشتی کو پار لگانا ہے اور خدا نہ خواستہ یہ ناؤ جو ہے یہ اشکولے کھاتے رہی، تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ دل سے طے کر لیں کہ ہم نے اس ملک کی قسمت بدلنی ہے، لیکن نہ میری تقریر سے نہ باتوں سے، محنت اور محنت۔ جو چیلنجز ہیں وہ یقیناً اگر میں یہ کہوں کہ ہمالیہ نما ہے تو یہ لفظ بھی شاید ان چیلنج کی صحیح طور پر عکاسی نہ کر سکے۔ ہمارا جو گیس کا اور بجلی کا جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے وہ مجموعی طور پر تقریباً 5 خرب روپے ہے۔ پی آئی کا جو قرضہ ہے 825 ارب روپے، بجلی کی جو چوری ہے سالانہ تقریباً 500 ارب روپے۔ اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال ہے کیا، کتنی گمبھیر ہے۔ آصف علی زرداری صدر بننے جا رہے ہیں۔ پہلی بار ہوگا کہ کسی سویلین نے دوبارہ صدارت سنبھالی۔ جب وہ صدر بنے تھے تو تاریخ میں سب سے زیادہ طاقتور سویلین صدر تھے۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے صدر کے اختیارات تقسیم کیے۔ 58(2)B کے صدر کے اختیارات کو بھی ہم سب نے مل کر ختم کیا۔ کی تاریخ میں انشاءاللہ تعالی پہلی بار ہوگا جب کوئی سویلین صدر نے یہ عہدہ 2 دفعہ سنبھالا ہے۔ پچھلی بار جب صدر زرداری صدر پاکستان بنا تو تب وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے طاقتور سویلین پریزیڈنٹ منتخب ہوا تھا۔ جو 58(2)B کا صدر پاکستان کا اختیار ہوتا تھا، ہم سب اس اختیار کو بھی ختم کیا تھا کہ ہم سب پورا پاکستان ایک ہو کے جو تمام مسائل ہے، جو معاشی مسائل ہے، جو بیرون ملک ہمارے خطرات ہیں، ان تمام مسائل کو مل کے انشاءاللہ تعالی ہمیں ان کے مقابلہ کرنا ہے۔ چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن ہے یہ اس حکومت کا، آنے والے حکومت کا
बहुत बड़ा प्रायोरिटी होगा, वैसी मीशत प्रायोरिटी होगा, जुडिशल रिफॉर्म्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाना है। वो जो हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नामुकम्मल मिशन था, जहाँ तक वो भी हम मिलके मुकम्मल करेंगे। वाकई चैलेंजेस हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब घबराएं नहीं, मिलकर मुकाबला करेंगे। आसिफ अली जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ कदम ब कदम चलने का ऐलान किया। कहा, हम शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं, भरपूर सपोर्ट करेंगे, सबकी मेहनत से हम पाकिस्तान को बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि वाकई चैलेंजेस मुश्किल हैं, डिफ़िकल्ट हैं, मगर आइंस्टाइन डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा, तो शहबाज शरीफ भी डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा और हम उसके पीछे खड़े होंगे। जहाँ कोई ज़रूरत पड़ेगी हम अपना ज़ोर बाजू भी देंगे, अपनी इनको इलेक्ट्रल अदरवाइज हेल्प भी देंगे और इंटरनेशनल हेल्प भी इनको देंगे कि एग्रीकल्चर इज़ आवर बेसिक इशू। एग्रीकल्चर को हम ठीक करें, कनाल्स की लाइनिंग करें, डैम्स बनाएं। जब मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का रेफरेंस दाखिल किया था शहीद का, तो कोई नहीं समझता था कि क्या हो सकता है या क्या होगा। आपने कल सुना और देखा कि तारीख ने एक पलटा लिया, तारीख मानी कि वो एक जुडिशल मर्डर था। IMF ने अपना मिशन पाकिस्तान भेजने का इंदिया दे दिया। काबीना की तश्कील के बाद दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए मिशन भेजने के लिए तैयार। डायरेक्टर IMF कम्युनिकेशन जूली कोज़ेक ने $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम की तकमील पर बात करते हुए कहा कि मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट की तकमील तरजीह है। मुआहदा अप्रैल 2024 में ख़त्म हो रहा है। निगरान हुकूमत में मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा गया। महंगाई कंट्रोल के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखी। तवानाई शोबे में टैरिफ में बर वक्त एडजस्टमेंट को लागू किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए बरतरफ करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने लिखा कि जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। तहरीरी फैसले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश की और अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने राय दी कि हाई या सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर अगर इल्ज़ामात आयद हों तो उन्हें अवामी सतह पर ज़ेर बहस लाया जा सकता है। कुछ जजेस की जानिब से खदशात का इज़हार करते हुए कहा गया कि अगर इल्ज़ामात पर जवाब देंगे तो वो भी मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में आएगा। काउंसिल ने राय दी कि जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 5 के मुताबिक जजेस को अवामी शोहरत के पीछे नहीं भागना चाहिए। काउंसिल की राय के मुताबिक जजेस की जानिब से अपने खदशात ज़ाहिर करने के बाद जुडिशल काउंसिल के रूल 5 में तरमीम की जाती है। तरमीम के मुताबिक कोई जज अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम का जवाब दे सकेगा। तरमीम शुदा काउंसिल रूल 5 के तहत किसी तनाज़े या सियासी नौयत के सवाल का जवाब नहीं देगा। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से रोकने के हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसी कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह का कहना था कि केस की तैयारी के लिए वक्त चाहिए। बाबर अवान ने दलाइल में कहा कि जिस जमात का सूबे में एक रुकन असम्बली है उसको भी 2 मखसूस नशिस्तें दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें, दूसरी जमातों में तकसीम का केस, मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से रोकने के हुक्म में 13 मार्च तक तौसी। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी पर केस की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त की समाअत की। बाबर अवान एडवोकेट ने दलाल दिए कि सदारती इलेक्शन हो रहा है और 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गईं। जिस जमात का सूबे में एक असेंबली मेंबर है इसको 2 मखसूस नशिस्तें मिली हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर पेश हों। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बरकरार, बाला इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। गरज चमक के साथ बरसात, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईरान से बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम कल पाकिस्तान में दाखिल होगा। 12 मार्च तक मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान और पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। लेह में पारा -9 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। अस्तोर में
3 हुंजा और स्कर्दो में कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत लाजवाल है, हमारी अखुवत और हम आहंगी बेमिसाल है। 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर आवाम का वतन की मट्टी से मोहब्बत का खुसूसी पैगाम। कहा कि इस दरख्त की कई शाखें हैं मगर बुनियाद एक है, हमारी ज़ुबानें तो मुख्तलिफ है मगर बयान एक है, यहाँ हर तरह के रंग हैं मगर पाकिस्तान एक है, हम सब के दिल की एक ही आवाज़ है और वो है पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि यौम पाकिस्तान की खुसूसी परेड के लिए आर्मर्ड व्हीकल्स की तैयारी। परेड की तैयारियों में आर्मर्ड कोर की यूनिट्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। जवानों ने अपने जज्बात का इजहार भी किया। ख़वातीन के आलमी दिन पर माओ, बहनों और बेटियों को कौम का सलाम। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी आज कई तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। FC बलोचिस्तान साउथ की ख़वातीन सोल्जर्स मादरे वतन की हिफाजत में पेश हैं। FC बैटल स्कूल में बहादुर बलोच बहनें बेहतरीन ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं ताकि दुश्मनों को ज़ोरदार जवाब दिया जा सके। कनाडा में श्रीलंकन फैमिली के 4 बच्चों समेत 6 अफराद कत्ल कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा के मुज़ाफ़ाती इलाके में मारे गए अफराद में माँ, 4 बच्चे और एक रिश्तेदार शामिल है। कत्ल के इल्ज़ाम में 19 साल का श्रीलंकन तालिब इल्म गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल का मुलज़िम उस फैमिली के साथ रह रहा था। तमाम अफराद को तेज़ धार आले से कत्ल किया गया। और अब खबरें शामिल करते हैं खेल के मैदान से। PSL मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 151 रन का हदफ शादाब 11 ने 8 बॉल्स पहले हासिल कर लिया। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, पंजाब यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा किताब मेले का आगाज़ हो गया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इफ्तिताह किया। न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।